Now we have to solve the trigonometric equation, and that equation is 1 plus sin cube x plus cos cube x is equals to 3 by 2 sin 2x. Already I have given you time because in the previous class I have given you a list of questions कि आप attempt करके आएंगे, so that we can discuss those questions directly. These questions are some tricky questions. 1 plus sin cube x plus cos cube x is equals to 3 by 2 sin 2x. I can write it. 1 plus sin cube x plus cos cube x is equals to 3 by 2 sin 2x. That sin 2x can be written as 2 sin x cos x. sin 2x को आप 2 sin x cos x लिख सकते हो, 2 कैंसिल होगा तो it will be 3 times sin x cos x, right? So simply we have kept the formula, yeah, we have put the value of sin 2x, that is 2 sin x cos x. अभी क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर ये आती है जो ऑब्जर्व करना होगा आपको. 1 प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स माइनस ऑफ 3 sin x cos x is equals to 0. तो इट्स नॉट a प्लस बी होल क्यूब. 1 प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 sin x cos x को देख के जो बात कहने की दिमाग में आना चाहिए आपको, दैट इज अबाउट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस ऑफ 3abc, राइट? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, एंड दैट फॉर्मूला इज, it is becoming a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals to 0 is there. We are going to conclude some result there. So a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is nothing but a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus of ab minus of bc minus of ca. ठीक, it is a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. ठीक, that is equals to 0 है ना, is equals to 0. We'll take care of that. थोड़ी सी कलाकारी, और ये रिजल्ट एज ए रिजल्ट आप उसको हमेशा ध्यान रखेंगे, बट मैं आपको डेरिवेशन सहित बताता हूँ. a plus b plus c, by observing this a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca, what we have done there, multiplication and division by 2. 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और 2 से हमने डिवाइड किया. बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप, multiplication and division by 2. When I multiply and divide by 2, जब 2 से कंप्लीट ब्रैकेट को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 सारी टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा. इट विल बी 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, डिवीजन में 2. It is a plus b plus c. बोले सर ऐसा क्यों किया? Why you gone for the multiplication and division by 2? 2 से multiplication और division क्यों? 2a square plus 2b square plus 2c square minus 2ab minus 2bc minus 2ca. I can write it. a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square. So a minus b whole square. So a minus b whole square can be written as a square plus b square minus 2ab. ये देखने वाली स्टेप है. a square plus b square minus 2ab. तो देखो ये जरा 2a square plus 2b square plus 2c square minus 2ab minus 2bc minus 2ca. तो ये 2a square को मैंने लिखा है a square plus a square. ये देखना जरा इसको. इस 2b square को लिखा b square plus b square और 2c square को लिखा c square plus c square. और एक एक लगा दिया हमने. कैसे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab विल बिकम a माइनस b होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2c विल बिकम a माइनस c होल स्क्वायर या c माइनस a होल स्क्वायर. एंड लाइकवाइज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc विल बिकम b माइनस c होल स्क्वायर. दैट वाज द ओनली रीजन दैट वी हैव गॉन फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय 2. नाउ योर क्वेश्चन वुड बी कि तरह ऐसा किया क्यों आपने? a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर, और इस रिजल्ट को फिर एज अ रिजल्ट आप याद रखिएगा. सो अभी फिलहाल किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? वी आर सॉल्विंग इट फॉर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब minus 3abc is equals to 0, right? Is equals to 0. When we say it is equals to 0, that means is equals to 0.
हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दो फैक्टर्स जीरो होंगे, या तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो एक तो रिजल्ट आएगा यहां से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, और दूसरा रिजल्ट क्या होगा, दिस ऑल्सो कैन बी इक्वल टू जीरो। You are very well aware of कि sum of squares will become zero only when individually सारे squares जो बन रहे हैं x square plus y square plus z square equals to zero, that means x is zero, y is zero, z is zero. A equals to b, b equals to c, c equals to a. So one of the result is going to be a plus b plus c equals to zero, और दूसरा रिजल्ट जो आएगा इसको कंक्लूड करने पर वही आएगा a equals to b equals to c. These are the two possibilities there. ठीक है, ये तो हमने जनरल बात कर ली. नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. व्हेन वी से 1 प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे हम? क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं? एक तो रिजल्ट होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0. a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स is equals to 0. And secondly, a equals to b equals to c. मतलब क्या हुआ? sin x is equals to cos x is equals to 1. ये दो रिजल्ट्स आएंगे इससे. बट एट द सेम टाइम आप ये ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे कि sin x इक्वल्स टू cos x इक्वल्स टू 1. नेवर पॉसिबल. sin x और cos x दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू साइमल्टेनियसली ले लें. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वैल्यू ऑफ x. समझ रहे हो क्या इस बात को? sin x की वैल्यू 1, बोले सर होता है ना sin x की रेंज -1 से 1 और cos x की रेंज -1 से 1, होता तो है, बट sin x की वैल्यू 1 और cos x की वैल्यू 1 साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती. जब sin x 1 होगा तो cos x विल बिकम 0, और cos x जब 1 होगा तो sin x विल बिकम 0. साइमल्टेनियसली बोथ कैन नॉट टेक देयर मैक्सिमम वैल्यू. सो एक सीधी सी बात हुई, sin x इक्वल्स टू cos x इक्वल्स टू 1 इज रिजेक्टेड. तो इवन अब ये बात जो जनरल कंक्लूड करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल्स टू 0. इसको एज ए रिजल्ट आप याद रखेंगे. व्हेन वी से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल्स टू 0. ये सारी स्टेप्स तो आपके सामने है. इसमें जो रिजल्ट आएगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, प्रोवाइडेड a इज नॉट b इक्वल्स टू b. तीनों अगर इक्वल नहीं है, तीनों a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, तब एक फैक्टर ये हो सकता है, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0. आप क्वेश्चन देखेंगे, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यू कैन राइट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0. डायरेक्टली कर सकते हैं. लेकिन अभी आपको समझा दिया मैंने, और ये ध्यान रखिएगा कि इट इज नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. इट्स अ जनरल, कहीं पर भी लगेगा, राइट? बट नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग. ये तो अब देखते हैं हम 1 प्लस साइन एक्स, वी हैव टू सॉल्व दैट. तो अब अभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना है हमें. ये तो हमने जनरल अभी तो इसको सॉल्व किया है बस. 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0 अब सॉल्व करेंगे इसको. फर्स्ट जस्ट नोट डाउन दिस. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0 ना. दैट 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, which is sin x plus cos x is equals to -1. We are very well aware of a sin x plus b cos x. अगर इक्वेशन सॉल्व करना है तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए. 1/√2 sin x plus 1/√2 cos x is equals to minus of 1/√2. This can be expressed as sin a cos b plus cos a sin b, or you can write it cos a cos b plus sin a sin b. It is up to. मैंने आपको समझा चुका हूं कि रिजल्ट जो अपीयर होगा, डिफरेंस जो होगा वो अपीयरेंस वाइज होगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. sin a cos b plus cos a sin b sin of x plus 5/4. इट इज माइनस ऑफ 1/√2. इन द राइट हैंड साइड क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ 1/√2 एंगल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट sin ऑफ माइनस थीटा माइनस π/4 एंड sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस to power n. That's the result. ठीक है.
जब आप बोले सर को सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व फर्दर करने के लिए n की वैल्यू रखी जाती है, इवन और ऑड। इफ इट इज इवन, अगर n की वैल्यू इवन है, ये समझा देता हूं मैं आगे तक की बात आपको, ताकि क्लैरिटी रहे आपके दिमाग में, कई बार करना होगा हमें। ये बात तो ऑलरेडी क्लियर है आपको कि अगर मान लीजिए 0 से 2 पाई कहा जाता है या माइनस पाई से पाई कहा जाता है, तो यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज ऑफ n, n इज क्लियरली एन इंटीजर वैल्यू देयर। n की वैल्यूज रखते हो आप 0 1 2 3 -1 -2 -3। यहां पर जब इसको फर्दर लिखना है तो बोले सर -1 रेज़ टू पावर n, दो केस बना के लिखेंगे, दो केस बना के लिखेंगे, मतलब इफ n इज इवन, तो n अगर इवन है तो लेट्स से n इज इक्वल टू 2m, तो दैट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 2m पाई। इवन वैल्यू है तो -1 रेज़ टू पावर इवन पावर विल बी पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा -π/4, और ये -π/4, दैट विल बिकम -π/2, दैट्स फाइन। इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है उस केस में n इज इक्वल टू 2m + 1। इवन और ऑड दो केस बना के बात करना होती है, ये समझ में आना चाहिए आपको। 2m + 1 पाई प्लस, नो नॉट प्लस, -1 रेज़ टू पावर ऑड पावर, जब ऑड पावर होगा तो इट विल बी नेगेटिव, नेगेटिव विथ नेगेटिव पॉजिटिव, π/4 -π/4। बोले सर कैंसिल हो रहा है, होने दीजिए, दीज आर द टू रिजल्ट्स देयर। बोले सर m क्या है, m इज क्लियरली एन इंटीजर वैल्यू, है ना, दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दैट फर्दर। क्लियर है, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट, इस केस इंपॉर्टेंट से मतलब ये क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है, अप्रोच इज इंपॉर्टेंट, ये बात है। नाउ लुक फॉर द नेक्स्ट वन, इट इज 3√3 sin³ x plus cos³ x plus 3√3 sin x cos x equals to 1, that equation you have to solve। It is 3√3 sin³ x plus cos³ x minus 1 plus 3√3 sin x cos x is equals to 0, right? लिख सकते हैं, I just shifted 1 in the left hand side from right hand side। अब again it is based on your observation। The previous question जो हमने सॉल्व किया, a³ plus b³ plus c³ minus 3abc is equals to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c है, that formula we have used। a³ plus b³ plus c³ minus 3abc, right? देखते हैं यहाँ पर a³ plus b³ plus c³ minus 3abc। दोस्तों this can be written as 3√3 sin³ x can be written as √3 sin x and whole cube of that। √3 का क्यूब जब आप करोगे तो दैट विल बी 3√3 sin³ x, राइट? 3 आप जरा चेक करेंगे, सेम रिजल्ट बन रहा है। दिस कैन बी रिटन एज a³ plus b³ plus c³ minus 3abc। यहाँ पर a क्या है, दैट लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, दैट a is √3 sin x, b is cos x and c is -1, right? So a³ plus b³ plus c³ minus 3abc equals to 0। in the previous question only we have solved, पूरा फॉर्मूला लिख के और पूरा डिराइव किया है। which gives you the result as a plus b plus c equals to 0। और एक और जो फैक्टर आता है वो क्या आता है कि a equals to b equals to c। जो दूसरा फैक्टर आया था वो क्या आया था, a equals to b equals to c। is it possible? √3 sin x is equals to cos x is equals to -1, no it is not possible anywhere। तीनों अरे भाई √3 sin x is equals to cos x is equals to -1, no it is not there। दो फैक्टर आते हैं ना अपने पास में, एक तो आता है a plus b plus c equals to 0 and the second one is a equals to b equals to c। it is not possible, a cannot be, तो डिस्टिंक्ट हैं, ये कभी इक्वल नहीं बनने वाले, और इक्वल नहीं बनेंगे तो दैट सेकंड वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, फाइन। So only one result is there which is a plus b plus c equals to 0। So a plus b plus c equals to 0, that will be √3 sin x plus cos x
minus 1 equals to 0. It is root 3 sin x plus cos x is equals to 1. It is coming in the form of a sin x plus b cos x. We are very much comfortable root over a square plus b square से divide कर देंगे, which is what? Root 3 square, that will be 3 plus 1 4. 4 का square root 2. You are going to divide it by 2. So it will become sin a cos b plus cos a sin b. Right? Sin a cos b plus cos a sin b is equals to 1 by 2. Principal value, first quadrant, without any hesitation we can write pi by 6. And sin theta equals to sin alpha, theta equals to n pi plus minus 1 raised to power n alpha. That's the result. आ रहा है समझ में? प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने और फर्दर सॉल्व करके बता दिया था कि भैया एन की वैल्यू इवन है तब क्या और एन की वैल्यू ऑड है तब क्या, और डायरेक्टली अगर माइनस पाई टू पाई और 0 टू पाई ऐसा गिवन है, यू कैन पुट द वैल्यू 0 1 2 3 4 -1 -2 एंड यू कैन चेक कि हाउ मेनी रिजल्ट्स आर कमिंग इन दैट इंटरवल. क्लियर है? Now you have to solve the inequality, and that inequality is 4 sin square x minus 8 sin x plus 3 less than equals to 0. 4 sin square x minus 8 sin x plus 3 less than equals to 0, where x is an element of 0 to 2 pi. So 4 sin square x minus 8 sin x plus 3 less than equals to 0. फैक्टराइज करा जा सकता है आसानी से. क्या बन रहा है फैक्टर्स? कैन यू टेल मी द फैक्टर्स डायरेक्टली, या चलिए बोले कर ले सर आप. 4 sin square x minus 6 sin x minus 2 sin x, right, plus 3 less than equals to 0. 2 sin x minus 1 and 2 sin x minus 3 less than equals to 0. These are the two factors you are getting there. Easily आ जाता है, सीधे सीधे फैक्टराइज हो रहा है. Now you have to decide further. 2 sin x minus 1 into 2 sin x minus 3 less than equals to 0. क्या किया जाए? हाँ, दोनों आ सकते हैं. ये तो ध्यान रखिए कि आप डायरेक्टली ढंग से सॉल्व नहीं कर सकते. यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट then product of the two numbers is coming less than 0, so there are two possibilities there. दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है, if I say AB less than equals to 0, क्या क्या कमेंट करेंगे आप? तो ये नहीं कहोगे कि दोनों नेगेटिव, गलत हो जाएगा. लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ के बैठे हो आप. नाउ वी आर इन क्लास 11th. A less than equals to 0, B greater than equals to 0, that's the case number 1. और A positive, B negative. These are the two cases, and then finally you have to take union of the two. दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस टाइप से दो केसेस आ रहे हैं. दोनों पॉसिबल है, तो दोनों का रिजल्ट फाइंड आउट करके दोनों का यूनियन लेने का. फिलहाल इधर देखिए आप जरा. 2 sin x minus 1 into 2 sin x minus 3. 2 sin x minus 3. जस्ट ऑब्जर्व दिस. 2 sin x minus 3. sin x की जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1. 2 sin x minus 3 equals to 0 कहीं आप सोचते हो तो sin x is coming as 3 by 2. वो तो नहीं हो रहा है. तो 2 sin x minus 3 की वैल्यू क्या होगी हमेशा? जस्ट थिंक ओवर दैट. 2 sin x minus 3. sin x is going to take values from -1 to 1. उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम वैल्यू -1 होगी. तो when even if sin x is taking its minimum value या maximum value, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, even if sin x is taking its maximum value as 1, 2 minus 3 that will be -1 which is negative. समझ रहे हो क्या इस बात को? सो पॉइंट इज 2 sin x minus 3 ये जो फैक्टर है that is always going to remain negative. ये तो हमेशा नेगेटिव रहने वाला है. 2 sin x minus 3 is always going to remain
negative. So if it is negative, we want product of the two is less than equals to 0. So 2 sin x minus 3 अगर negative है तो ये तय है that 2 sin x minus 1 must be positive or greater than equals to 0 including 0 because inequality में यहाँ पर less and equals to 0 is also there. So 2 sin x, समझ रहे हो क्या इस बात को? Because 2 sin x minus 3 is always a negative number. If it is a negative number, it must be positive. So 2 sin x minus 1 greater than equals to 0. Yeah, sin x greater than equals to half. The interval which has been asked to you is 0 to 2 pi. 0 से 2 pi में आपसे पूछा गया है sin x greater than equals to half. ये trigonometric inequality हो गई. This is nothing but the trigonometric inequality. So sin x greater than equals to half. तो 0 से 2 पाई में sin x इक्वल्स टू हाफ कब कब होगा बताइए सक्षम. sin x इज बिकमिंग इक्वल्स टू 1/2 इन द इंटरवल 0 to हाफ. ये तो मैंने कर बना दिया. 0 से 2 पाई में आई वांट ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ. तो ये बता दो मुझे sin x की वैल्यू 1/2 0 से 2 पाई में कब कब बनेगी. 0 से पाई तक नहीं, 0 से पाई तक 1/2 नहीं, 1/2 कब कब बनेगी. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x sin x विल बिकम 1/2. अरे रे रे कुछ भी बोल रहा है. मैं ये पूछ रहा हूं कि sin x की वैल्यू 1/2 कब होगी इन द इंटरवल 0 to 2 पाई. तो एक सीधी सी बात है कि sin थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. एक कर्व आपके सामने, sin थीटा पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में और नेगेटिव है थर्ड फोर्थ में. तो नेगेटिव रीजन में तो पाई से 2 पाई में तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बिकमिंग 1/2. तो नेगेटिव है. साइन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में. तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी. तो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में. π/6 साइन 30 डिग्री और सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल मतलब पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/6 5 π/6. राइट. लाइन ही बना देता हूं मैं आपको. 1/2 आपसे क्या पूछा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ. तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ, पहले सुनो समझो. ये कर्व आपके सामने sin x का ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ किस रीजन में 1/2 और 1/2 से ज्यादा है. किस रीजन में 1/2 और 1/2 से ज्यादा है. तो शायद बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ेगा. 1/2 और 1/2 से ग्रेटर. यही तो हुआ ना. तो π/6 से 5 π/6 क्या लिखोगे आप. x इज एन एलिमेंट ऑफ 2 क्लोज इंटरवल. वाई क्लोज इंटरवल π/6 पे ये 1/2 बनता है और 5 π/6 पे 1/2 बनता है. एंड इट इज रिक्वायर्ड हियर इक्वल टू साइन इज आल्सो देयर. आ रहा है क्या समझ में. So π/6 to 5 π/6. That's the interval in which sin x is greater than equals to half. और एक और बात बता देता हूं मैं आपको. अगर मान लीजिए, सुनिएगा इस बात को ध्यान से. यहां तो आपको एक x is an interval of 0 to 2 pi has been given. मान लीजिए अगर ये इंटरवल नहीं दिया होता, अगर ये इंटरवल नहीं दिया होता, आपको जनरल रिजल्ट लिखना होता इसका. तब क्या लिखते हैं. ये तो आपका जो रिजल्ट है तो पर्टिकुलर एक इंटरवल में आया, 0 से 2 पाई में आया. तो आपने कहा ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में जो π/6 से 5 π/6 ठीक है सर. अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता कि 0 से 2 पाई नहीं दिया हुआ है, इन जनरल आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक इनेक्वलिटी का रिजल्ट लिखना है इन जनरल.
पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 तो आपको समझ में आ गया, ठीक बात है। जनरल लिखना है ना उसको। अब ऐसा कितनी बार होगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स होगा, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ sin x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। ये तो कर्व बनेगा है, तो ठीक है। तो हमने केवल 0 से 2 पाई में बनाया था, केवल इसलिए इतना था। ये तो फिर बनते जाएगा इधर, और इधर भी बनेगा वो, तो ठीक है। तो ये इंटरवल रिपीट होंगे, सीधी सी बात है ना। पीरियोडिक कर्व है, मतलब जो 0 से 2 पाई में, वही 2 पाई से 4 पाई में, वही 4 पाई से 6 पाई में, और वही -2 पाई से 0 में। दैट इज द मीनिंग ऑफ द पीरियोडिसिटी। तो अब मैं कहूंगा sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ, तो बोले सर ये पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 से इसको जनरलाइज कर दोगे। कैसे जनरलाइज करोगे, ऐसे देख लेना, x इज एन एलिमेंट ऑफ, बोर्ड पे देखिएगा, ये 2 पाई से पीरियोडिक है, इसलिए ऐसे लिखा जाता है 2n पाई प्लस पाई बाय 6 से लेकर 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। ये जनरलाइज कर दिया मैंने इसको, ये जनरलाइज कर लिया। सुनो इसको, व्हेन आई से n क्या है, n इज क्लियरली एन इंटीजर वैल्यू। अगर n की वैल्यू 0 है तो इंटरवल क्या आता है, पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6, ठीक है। n की वैल्यू 0 है तो ये रहा आपका। n की वैल्यू अगर 1 है तो वो क्या बन रहा है, n की वैल्यू 1 पे 2 पाई प्लस पाई बाय 6 और 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6। देखो ना, यही तो हो रहा है, बोर्ड पे देखिएगा प्लीज। ये 0 से 2 पाई हुआ, और 2 पाई से 4 पाई में, तो 2 पाई से 4 पाई में जब आप देखोगे तो अगेन टू पाई प्लस पाई बाय 6 और 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6, ये इंटरवल रिपीट होगा। जब n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 पाई प्लस ये होने वाला है, बिकॉज इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। और क्लियर कट स्केच कर देता हूं। इतना आपको समझ में आना चाहिए। देखो जरा ध्यान से, ये 2 पाई है और ये 2 पाई से 4 पाई, ये एंगल है आपका पाई बाय 6, ये एंगल है 5 पाई बाय 6। जब n की वैल्यू 0 है तो पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6। जब n की वैल्यू 1 है तो इट विल बी 2 पाई प्लस पाई बाय 6 से 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6। ये देख लो। बोले लाइन कौन सी बनाई सर आपने, 1/2 की बनाई भैया। व्हेन इट इज बिकमिंग 1/2, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 और ये 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6। जब n की वैल्यू 2 लोगे आप तो 4 पाई प्लस हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये हो गया हाउ टू राइट द जनरल रिजल्ट। ये तो पर्टिकुलर था क्योंकि आपको जब 0 से 2 पाई गिवन था। दैट्स द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। अभी और बात कर रहे हैं बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज में look for cos x is greater than equals to half. If I had to write the result in the interval of 0 to pi as well as general solution also, cos x greater than equals to half, ये तो क्लियर है आपको कि कर्व स्केचिंग जो आपने सीखा बहुत हेल्पफुल है ना। cos x greater than equals to half, ये बात भी क्लियर है कि cos x is again a periodic function with period 2 pi, है ना। so cos x पहले तो हम 0 से 2 pi के इंटरवल पे लिख लें और फिर उसको जनरलाइज कर लें। देखो cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ, 1/2 से ग्रेटर। cos थीटा पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। साफ साफ दिख रहा है आपको, 0 से π/2 के इंटरवल में 1/2 बनेगा, फिर तो ये बिलो द x एक्सिस है, नेगेटिव वैल्यूज है, और फिर π/2 से 2 पाई विच इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या करता हूँ, 1/2 पे एक लाइन और
खींच लेते हैं ताकि वो क्लैरिटी होगी वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल। हम क्या चाहते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। ये बताइए कब कब बन रहा है 1/2, पाई बाय 3 पे बन रहा है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कब बन रहा है ये 1/2, फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी हम बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए क्लास 11, तो पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा भी समझ में आना चाहिए अपने को। तो इट इज बिकमिंग 1/2 अगेन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो क्लियर है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या होगा, तो 2 पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या एंगल होगा, तो 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई माइनस पाई/3, क्योंकि ये एरर नहीं होना चाहिए। 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस पाई/3, तो इट विल बिकमिंग व्हाट 5 पाई/3, ठीक है। अब अगर मुझे 0 से 2 पाई के इंटरवल में लिखना है, अगर 0 से 2 पाई के इंटरवल में लिखना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ लिखना है। कैन यू सजेस्ट मी? अभी तो कर आपके सामने सब कुछ आप लिख सकते हो। ग्रेटर देन इन इक्वल टू हाफ बता सकते हैं, आपको बात नहीं। 0 से पाई/3 एक इंटरवल होगा, दोस्तों देख रहे हो ना आप लोग, ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, दिस इज द इंटरवल। ये वैल्यूज हैं जो रिक्वायर्ड है आपको। यूनियन, क्योंकि एक इंटरवल ये हो गया, और फिर सेकेंड इंटरवल, जो सेकेंड इंटरवल है 5 पाई/3 पे बनेगा। ये 5 पाई/3 से लेकर 2 पाई। ठीक, ये तो हो गया इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। लेकिन अगर मुझे जनरल लिखना है, तो जनरल लिखना है तो अगेन ये बात भी आपको समझ में आ गया कि सर ये तो कर्व जो आपने बनाया 0 से 2 पाई में, cos थीटा इज द पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में जो कार्यक्रम है वही कार्यक्रम 2 पाई से 4 पाई में, और वही 4 पाई से 6 पाई, और राइट। और सेम वे इन द नेगेटिव साइड -2 पाई से 0 में भी वही होने वाला है। तो 2 पाई से पीरियोडिक है, इस बात को ध्यान रखते हुए जनरल सोल्यूशन अगर आपको लिखना होगा दोस्तों, तो जनरल सोल्यूशन में सिंस इट इज पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, तो आप 2n पाई जोड़ दीजिए सब में, सभी में जनरल लिखना है आपको एट 2n पाई, राइट। 2n पाई प्लस 0, ये रिजल्ट होगा। ठीक, आप जरूर वेरीफाई कर सकते हैं कि जब n की वैल्यू 0 है तब ये इंटरवल दिखा रहा है आपका 0 से 2 पाई में आ गया। n की वैल्यू 1 है तो वो दैट विल गो इन द इंटरवल 2 पाई से 4 पाई में चले जाएगा। n की वैल्यू 2 है तो 4 पाई से 6 पाई में चले जाएगा। n की वैल्यू -1 है तो -2 पाई से 0 में आ जाएगा। Now we have to look for tan x greater than equals to 1, and again we are going to look in the interval of, first we are going to discuss in the interval of -π/2 to +π/2. और 0 से पाई जो भी इंटरवल होगा हम बात कर पाएंगे। और सेकेंडली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द जनरल सॉल्यूशन आल्सो। tan x is a periodic function with period pi. You are very well aware of sin x, cos x, sec x, cosec x. These four functions are periodic with period 2 pi, and tan x and cot x are periodic with period pi. आप ये भी समझ रहे हो कि यार देखो जो हमने पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था जरूरी था ना, और वो पता लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है आपको इनिशियल क्लास 11 के स्टेजेस, क्योंकि इट इज देयर इन क्लास 12th, लेकिन वो आइडिया जब आपको रहता है तो उस फंक्शंस में आसानी होती है, क्वेश्चन सॉल्विंग में आसानी होती है, इनइक्वालिटीज में आसानी होती है, और कंसेप्ट समझ में आता है उसके थ्रू।
हाउ टू स्केच द कर्व ऑफ tan x दैट वी हैव डिस्कस्ड. tan x इज sin x बाय cos x, है ना. तो cos x विल बिकम 0 एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. उन पॉइंट्स के ऊपर आप लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे. So minus pi by 2 से pi by 2. In that interval tan x greater than equals to 1. What about the tan x? Tan x is कुछ ऐसा फंक्शन. That's the curve of tan x. So tan x greater than equals to 1. अगर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के इंटरवल में बात करें अपन, tan x will become 1 at pi by 4. पाई बाय 4 पे 1 बनेगा. कैन यू टेल मी द इंटरवल? बहुत आसानी से बता देना चाहिए आपको. माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में tan x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. कैन यू टेल मी द रिजल्ट? बोलिए. ये रहा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2. वी वांट tan x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. पाई बाय 4 पे इट इज बिकमिंग 1 और पाई बाय 2 अप टू पाई बाय 2. पाई बाय 4 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 विथ ओपन ब्रैकेट्स एंड पाई बाय 4 विथ क्लोज ब्रैकेट. अगर tan x ग्रेटर देन 1 होता तो क्या चेंज होता रिजल्ट में? इफ tan x ग्रेटर देन 1 तो पाई बाय 4 ओपन ब्रैकेट हो जाता. ठीक है ना. तो क्लियर है, अपने को कंफर्टेबल है. ये तो हो गया रिजल्ट इन द इंटरवल ऑफ माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2. इफ आई टू राइट द जनरल रिजल्ट, जनरल रिजल्ट लिखना है तो इन प्रीवियस टू केसेस व्हेन वी हैव डिस्कस sin x एंड cos x, सुनिएगा इस बात को. जनरल रिजल्ट जब लिखना था तो इन केस ऑफ sin x एंड cos x, sin x और cos x 2 पाई से पीरियोडिक है, तो वी हैव एडेड देयर 2n पाई. तब हमने 2n पाई ऐड किया था. tan x और cot x आर पीरियोडिक विद पीरियड पाई. तो हम क्या करेंगे यहां पर, जब जनरल लिखना होगा n पाई प्लस पाई बाय 4. n पाई प्लस पाई बाय, दैट्स द रिजल्ट. ठीक है. n इज अगेन एन इंटीजर. ये जीरो भैया माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 का रिजल्ट था. ये n की वैल्यू इंटीजर तो सारे रिजल्ट आ जाएंगे. n की वैल्यू 0 रखने पर, n की वैल्यू 0 रखने पर पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2. ठीक है. फिर n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, यू विल बी गेटिंग ऑल द इंटरवल्स देयर. इट इज अ पीरियड. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? 2n पाई और n पाई, पाई से पीरियोडिक है इसलिए n पाई. Now look for the inequality. Sin x cos x plus tan x by 2 is greater than equals to 1. Again you have to solve this trigonometric inequality. So sin x cos x plus tan x by 2 greater than equals to 1. So it is becoming 2 sin x cos x plus tan x divided by 2 is greater than equals to 2. ठीक है. 2 तो पॉजिटिव नंबर है, दिक्कत नहीं. साइन 2 sin x cos x will become sin 2x plus tan x and greater than equals to 2. So when we say sin 2x and tan x, this is tan x and it is sin 2x. So sin 2x can be written in terms of tan x. It is 2 tan x upon 1 plus tan square x plus tan x greater than equals to 2. ठीक है ना. 2 tan x upon 1 plus tan square x plus tan x greater than equals to 2. Take the LCM. 1 plus tan square x is nothing but sec square x, which is clearly positive number greater than equals to 1. 1 plus tan square x जो होगा 1 से greater ही है, greater than equals to 1, so you can cross multiply without any hesitation. So 2 tan x plus ठीक, राइट हैंड साइड में जब मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स. ठीक, बढ़िया.
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसलिए कर सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर. इनफैक्ट पॉजिटिव नहीं, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द रेंज ऑफ दैट ऑल्सो. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा. रेंज ऑफ सेक थीटा, सेक थीटा की रेंज क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग माइनस वन इंक्लूडिंग वन. व्हेन आई से सेक स्क्वायर थीटा, तो दैट इज गोइंग टू बी क्लोज ब्रैकेट 1 टू इन्फिनिटी. तो रेंज 1 से इन्फिनिटी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं. फिलहाल इट विल बिकम अ क्यूबिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ tan x. देखिएगा, इट इज बिकमिंग tan क्यूब x. इट इज प्लस tan x प्लस 2 tan x. अच्छा, tan स्क्वायर x ये भी टर्म है. इट इज tan x माइनस 2 tan स्क्वायर x. ठीक, 2 tan x प्लस tan x 3 tan x minus of 2 greater than equals to 0. So it is tan cube x minus 2 tan square x plus 3 tan x minus 2 greater than equals to 0. It is becoming a cubic equation in terms of tan x. एक रूट तो इसका हिट एंड ट्रायल से निकालना होगा हमें. इट इज नथिंग बट टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2 greater than equals to 0. So cubic equation एक रूट तो हिट एंड ट्रायल से, और हिट एंड ट्रायल से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा. ये 1 प्लस 3 4 और ये माइनस टू दैट विल बी माइनस 4 कैंसिल होके 0 होता है. तो t इक्वल्स टू 1 इज क्लियरली रूट ऑफ दैट, या t माइनस 1 इज गोइंग टू बी अ फैक्टर ऑफ दैट. ठीक है ना. सो t माइनस 1 से डिवाइड करोगे, यू आर गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. बता दीजिए मुझे क्या क्वाड्रेटिक आता है फास्ट. Please divide it by t minus 1. क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करें ना, तो एक रूट हिट एंड ट्रायल से t इक्वल्स टू 1 यू आर गेटिंग दैट. तो t माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट द क्वाड्रेटिक. सो यू आर गेटिंग t माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस t प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. So finally we have taken tan x equals to t, so it is tan x minus 1 into tan square x minus tan x plus 2 greater than equals to 0. But what you have observed here, ये क्वाड्रेटिक था, और क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आपने ऑब्जर्व किए, दोज आर कमिंग कॉम्प्लेक्स रूट्स. इनफैक्ट ये जब कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2, इनफैक्ट दैट एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में यू आर गोइंग टू डिस्कस इन द सेकंड फेज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव. वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर वॉट एवर वैल्यूज ऑफ टी. t belongs to r. t square minus t plus 2 is greater than 0 for t belongs to r. So ये वैल्यू जब हमेशा पॉजिटिव रहेगी तो t minus 1, if it is positive प्रोडक्ट दोनों का greater than equals to 0 आ रहा है, तो t minus 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए. तो बड़ी अच्छी बात है. tan x minus 1 greater than equals to 0 और tan x is greater than equals to 1. और ऑलरेडी we have discussed tan x greater than equals to 1 की बात करी थी. तो x is an element of n पाई प्लस पाई बाय 4 से लेकर n पाई प्लस पाई बाय 2. दिस इज विथ ओपन, दिस इज विथ क्लोज्ड. ठीक, ये बात थोड़ी सी अटपटी जरूर लगी होगी आपको. सर ये आपने डायरेक्ट पॉजिटिव कैसे कहा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. मैं एक दूसरे तरीके से इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको. ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है. इसका डी नेगेटिव एक्चुअल में आपको इमेजिनरी रूट्स मिले, इसके इमेजिनरी रूट्स मिले मतलब डी नेगेटिव है. डी नेगेटिव है तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा. अभी चूंकि आपने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी है तो मैं आपको इसको दूसरे ढंग से इसको समझाता हूं. देखो, लेट्स से इट इज एफ ऑफ टी, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2. अब मैंने क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर की टर्म्स में कन्वर्ट किया. ये टी स्क्वायर माइनस टी को देखते हुए परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना तो सिखाया मैंने आपको. 2 इंटू 1/2 इंटू टी, मैंने यहाँ पर 1/4 ऐड किया और 1/4 सब्ट्रैक्ट किया. I want to convert in terms of perfect square, ताकि आपको ये डाउट नहीं रहे कि सर ने ये पॉजिटिव क्यों लिख दिया था. It is becoming t minus 1/2 and whole square of that a square plus b square minus 2ab plus ये 8 minus 1
7/4, राइट। तो t माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 7/4, दोस्तों t माइनस 1/2 होल स्क्वायर है तो नेगेटिव तो कभी नहीं होने का, मिनिमम वैल्यू भी इसकी होगी तो जीरो होगी, t इक्वल टू हाफ के ऊपर, 7/4 इज ऑलरेडी देयर, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, समझ रहे हो क्या? इट्स क्लियर नाउ। तो ये अगर हमेशा पॉजिटिव है तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टू इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो टी माइनस 1 मस्ट ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो tan x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और उसके अकॉर्डिंग आपने निकल लिया, ठीक। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यू हैव टू सॉल्व दीस टू क्वेश्चन। इनफैक्ट दोनों क्वेश्चन को आपने ऑब्जर्व किया होगा तो इनफैक्ट यू आर थिंकिंग दैट ओके सर दोनों क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिमिलर टाइप, ये बात तो कंफर्म है, एक बनेगा तो दूसरा बन जाएगा, तो तय बात है, ओनली कॉन्स्टेंट्स आर वेरिंग देयर, टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स कॉस एक्स इज देयर। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करिएगा, इसीलिए आई हैव गिवन टू क्वेश्चंस स्ट्रेट वे, एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक आप करिएगा। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स ये टर्म्स है यहाँ पर, ये डिग्री 2 ये डिग्री 2 और साइन एक्स कॉस एक्स डिग्री 1 मिला के डिग्री 2। क्या करिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, इसको tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको tan x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिए। tan x के टर्म्स में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स कॉस एक्स ये टर्म्स को आपने ऑब्जर्व किया, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो इट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, 2 tan स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स दैट विल बिकम tan स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 5 टाइम्स साइन एक्स cos एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, साइन एक्स cos एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स tan एक्स माइनस ऑफ cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो इट विल बिकम 8 इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाय cos स्क्वायर एक्स, शैल आई राइट sec स्क्वायर एक्स, चलेगा कोई दिक्कत तो नहीं। You have divided complete equation by cos square x. So cos square x फिर से समझ लीजिए, sin square x upon cos square x is becoming tan square x, पहले समझ लीजिए फिर लिखिए ना, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। sin square x upon cos square x that is tan square x, sin x cos x upon cos square x, तो एक cos x कैंसिल होगा, sin x by cos x will become tan x, 8 cos square x upon cos square x only 1, तो ये cos square x को cos square x से डिवाइड करेगा तो that will be 1 there, और माइनस 2 डिवाइडेड बाय cos square x तो 1 बाय cos square is sec square। क्यों किया ऐसा, 2 tan square x माइनस ऑफ 5 tan x माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस tan square x, राइट। So it is becoming, शायद क्लिक तो जरूर कर गया कि it is becoming a quadratic in terms of tan x, और हमारा काम तो आसानी से हो गया, 2 tan square x इधर से माइनस 2 tan square x, it will become 4 tan square x माइनस ऑफ tan x, this is minus 8 plus 2 equals to 0, so 4 tan square x minus 5 tan x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करके देख लेते हैं, कुछ बन रहे हैं क्या, कुछ फैक्टर्स बन रहा है कुछ, माइनस 8 प्लस 3, ठीक है। So when we take 4 tan x common, tan x minus 2 plus 3 common लेने पर tan x minus 2 equals to 0, so 4 tan x plus 3 into tan x minus 2 equals to 0, ठीक है, हमारा काम तो हो गया है। तो वन ऑफ द फैक्टर इज 4 tan x plus 3 equals to 0,
So tan x is equals to minus 3 by 4. And the second one is tan x is equals to 2. So tan x is equals to minus of 3 by 4. So tan x is equals to minus of 3 by, बोले सर एंगल याद नहीं आ रहा है. टेक इट इन टर्म्स ऑफ थीटा 1 बीटा 1 बीटा जो भी लेना है लीजिए आप. tan beta, so x is equals to n pi plus beta, where beta is nothing but tan inverse of minus 3 by 4. That's the inverse trigonometric function which I am going to discuss in class 12th, provided अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो. tan x equals to 2, so इसको लिख देते हैं अपन tan beta 1, so x is equals to n pi plus beta 1, where beta 1 is what, 10. ये रिजल्ट हो गए, राइट. और जिस ढंग से आपने सॉल्व किया एग्जैक्टली ऑन द सिमिलर मैनर्स यू आर गोइंग टू सॉल्व द सेकंड. ज्यादा क्या सोचना है, सेम sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और sin x cos x की टर्म्स से कर लीजिए, आप बना लीजिए. Now the question is tan of cot x is equals to cot of tan x, and you have to prove that sin 2x is equals to 4 upon 2n plus 1 pi. क्या प्लान कर रहे हो आप इसके लिए? tan of cot x is equals to cot of tan x. tan of cot x, so it can be written as cot of tan x can be written as tan of pi by 2 minus cot x. लिख सकते हैं. tan 90 minus theta is clearly cot theta. So cot of tan x को हमने ले उठा के लिख दिया tan of pi by 2 minus cot x. डायरेक्टली इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ऑलरेडी आई हैव गिवन दीज क्वेश्चंस. So tan of cot x is equals to tan of pi by 2 minus cot x. tan theta equals to tan alpha. So tan theta equals to tan alpha. Theta is equals to n pi plus alpha. It will become in fact tan of cot x, sorry, it is tan x there. cot theta को हमने लिखा है tan 90 minus theta, ठीक है ना. ठीक है, cot of tan x is tan of pi by 2 minus tan x. So tan 90 minus theta is cot theta. Fine. So it is cot x plus tan x is equals to n pi plus pi by 2. Cot x plus tan x is equals to n pi plus pi by 2. Cos x by sin x plus sin x by cos x. It is becoming n pi plus pi by 2, ठीक है. But take the LCM, cos square x plus sin square x, that will become 1 upon sin x cos x is equals to 2n pi plus pi by 2. तो सिंपल सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो कहीं कुछ खास नहीं. इट इज इन फैक्ट 2 upon 2n plus 1 pi into sin x cos x. We want result in terms of sin 2x, तो ठीक है ना, क्या परेशानी है. 4 upon 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को. 2 sin x cos x, and 2 sin x cos x is nothing but sin 2x. That's the result. किया क्या हमने? cot theta we have written tan 90 minus theta, and tan theta equals to tan alpha, theta equals to n pi plus alpha. cot x को cos by sin, tan को sin by cos, LCM लिया और सॉल्व कर लिया. sin x cos x, तो 2 sin x cos x is sin 2x. Now the question is 3 raised to power sin 2x plus 2 cos square x
प्लस 3 रेस्ट टू पावर 1 माइनस साइन 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 28। सॉल्व करना है हमें इसे। साइन 2x प्लस 2 cos square x, हियर इट इज 1 माइनस साइन 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x। तो सबसे पहले क्या किया हमने, 3 रेस्ट टू पावर साइन 2x प्लस 2 cos square x। ये बहुत ज़रूरी कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है इस क्वेश्चन को, क्योंकि प्रीवियस क्लास में इसीलिए मैंने एक लिस्ट दी थी, आप ये अटेम्प्ट करके आएंगे। प्लस 3 रेस्ट टू पावर 1 माइनस साइन 2x, ये साइन 2x प्लस 2 cos square x और ये साइन 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x। मैंने क्या किया इसको, साइन स्क्वायर x आई हैव रिटन एज 1 माइनस cos square x। रीजन ये सेम फॉर्म में आ जाए ना, बाय ऑब्जर्विंग दिस साइन 2x प्लस 2 cos square x को देखते हुए, इधर मैंने 2 साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स कर दिया, इज इक्वल टू 28। 3 रेस टू पावर साइन 2x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 रेस टू पावर इट इज 1 प्लस 2 3 माइनस ऑफ साइन 2x माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स। तो माइनस साइन कॉमन लेने पर इट इज साइन 2x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 28। एनीबडी ने डाउट? कुछ बड़ा काम नहीं किया, केवल इतनी सी बात है कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा, और वो भी इस बात को देखते हुए कि साइन 2x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स, और हमारा टारगेट यही था, ये साइन 2x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स और ये साइन 2x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स। राइट, अच्छा सवाल है। प्लस दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 रेस टू पावर साइन 2x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 28। भाई इट इज, इफ इट इज a रेस टू पावर m माइनस n, इट कैन बी रिटन एज a रेस टू पावर m अपॉन a रेस टू पावर n। कोई बड़ी बात तो नहीं हुई। तो 3 रेस टू पावर 3 अपॉन 3 रेस टू पावर साइन 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x। व्हाट नेक्स्ट? कैंसिल कहाँ कर देगा भाई? 3 रेस टू पावर साइन 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x, टेक इट इक्वल्स टू t y z वॉट एवर यू वांट टू टेक। ठीक है ना? तो 3 रेस टू पावर साइन 2x plus 2 cos square x, keep that equals to t. It will be t plus 27 divided by t is equals to 28. It is t square minus 28t 27 is equals to 0. And when you factorize that, 1 and 3, these are the two values we are getting for t जब आप इसको फैक्टराइज करोगे। राइट, तो थोड़ा सा फर्दर जरा अटेम्प्ट कीजिए। कीप t इक्वल्स टू 1 ईयर, यू विल बी गेटिंग वन सेट। प्लीज इंडिपेंडेंटली करिए सभी लोग। कीप t इक्वल्स टू 1 एंड देन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। 1 और 27, राइट, सॉरी 1 और 27। तो कीप 1 ईयर इन प्लेस ऑफ t और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, और कीप 27 ईयर एंड सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। करिए, इंडिपेंडेंटली करिए, पर बट दैट्स द अप्रोच, कैसे प्रोसीड करना। तो देखिएगा, नाउ t इक्वल्स टू 1, व्हेन वी से t इक्वल्स टू 1 इट इज 3 रेस टू पावर साइन 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 3 रेस टू पावर 0. The second one is t equals to 27. It is 3 raised to power sin 2x plus 2 cos square x is equals to 3 cube. Right? It is here sin 2x plus 2 cos square x is equals to 0. ये रिजल्ट आएगा आपका। sin 2x can be written as 2 sin x cos x.
plus 2 cos square x equals to 0. You can take 2 cos x common. It is sin x plus cos x equals to 0. Right? कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए. एक रिजल्ट होगा cos x equals to 0. x is equals to odd multiple of pi by 2. पहले देख लीजिए. और जो दूसरा रिजल्ट आएगा वो आएगा sin x plus cos x equals to 0. कैसे सॉल्व करोगे sin x plus cos x equals to 0? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर देंगे. नाउ यू आर कंफर्टेबल यार. रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं ना. But sin theta will become 0 when theta equals to n pi. The second one is t equals to 20. ये दो रिजल्ट्स हो गए. Then t equals to 27. 27 को उठा के लिखा आपने 3 क्यूब. बोले सर इसी में दिक्कत आ रही है. sin 2x plus 2 cos square x is equals to 3. क्या करें इसका? sin 2x plus 2 cos square x is equals to 3. क्या किया जा सकता है अभी? ये इक्वेशन तो इक्वल्स टू 0 था तो हमने आसानी से कर लिया. इक्वल्स टू 0 था तो हमने बहुत आसानी से कर लिया. अभी क्या किया जाए? sin 2x plus 2 cos square x equals to 3. It is sin 2x plus 2 cos square x is there. ये 3 है. ये समझ लीजिए एडिंग -1 बोथ साइड्स. बोले सर क्यों -1 क्यों ऐड किया? द रीजन इज ये 2 cos square x -1 जो है ना ये cos 2x बन जाएगा. 3 - 1 is 2. बोले सर हाँ अब तो हो जाएगा. बोले कैसे? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें. सेम फॉर्म में आ रहा है. ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स या ए साइन 2x प्लस बी कॉस 2x. एक्स एक्स हो या 2x 2x हो या 10x 10x हो अप्रोच तो सेम रहेगी. तो साइन 2x प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू 2. यहाँ पे तो उठा के लिख दीजिए बेहिचक 5. नो सॉल्यूशन. क्यों नो सॉल्यूशन क्यों लिख दिया मैंने? साइन 2x प्लस कॉस 2x की जो रेंज होती है वो -√2 से +√2. इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी √2. इट कैन नेवर बी इक्वल्स टू 2. इसको दूसरे ढंग से कहें अगर हम सुनो तो इट इज 2. तो हमने कहा ठीक है √2 रहेगा तो 2 तो हो नहीं सकता 5. या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं. सुनो इस बात को ध्यान से. साइन 2x की रेंज क्या होगी? -1 से 1. कॉस 2x की रेंज क्या है? -1 से 1. ये 2 केवल तभी बन सकता है. ये 2 बन तो सकता है लेकिन केवल तभी जब sin 2x और cos 2x 1 हो जाए. जब sin 2x की वैल्यू भी 1 हो और cos 2x की वैल्यू भी 1 हो तब ये 2 हो सकता है. ऑलरेडी हमें पता है √2 से ऊपर तो हो नहीं सकता लेकिन फिर भी कहने आपको सारी आइडियाज आते हैं. तो ये भी 1 हो और ये भी 1 हो. लेकिन यार एक बात फिर हमने डिस्कस करी कि sin 2x इक्वल्स टू 1 एज वेल एज cos 2x इक्वल्स टू 1. साइमल्टेनियसली बोथ कैन नेवर टेक देयर मैक्सिमम वैल्यू. जब 1 लेगा तो दूसरा 0 हो जाएगा. Can never be equals to 2. That's fine. You will be getting these two results there.